Hi everyone, welcome back to the channel. Well, in today's video, I want to talk about something which is very much visible, but nobody talks about that. About the trap of the notification dates when it comes to RBI Grade B exam. When we discuss about RBI Grade B exam, there might be n number of deficiencies. Quant reasoning बहुत मुश्किल आता है. जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है. करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल आते हैं. एन नंबर ऑफ डेफिशिएंसीज यू कैन फाइंड इन द एग्जाम. But I think the very main problem with the exam is that it doesn't have a fixed notification date. Can you imagine that? One of the leading regulatory bodies of India, Reserve Bank of India, it is conducting exam from the last so many years. Even the vacancies have increased in the past some years. Why this body cannot have a fixed notification date every year? I am not able to understand this. What is the problem in conducting the exam in such a manner? आप यूपीएससी को देखिए कितनी प्रोफेशनल है. एक डेट सेट थी, इलेक्शंस आते हैं, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन चेंजिंग द डेट एंड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट सो दैट देयर इज अ सर्टेनिटी अमंग द स्टूडेंट्स के एग्जाम कब होने वाला है. एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज स्टॉपिंग देम. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम. दे आर far better than us. But this is an improvement area I feel which must be looked upon this. This is our request to them. और अगर ये लॉजिक पे बात की जाए कि जी हमें नोटिफिकेशन डेट की जरूरत ही क्या है, जरूरत है. The very first point is that it contains lot of current affairs, and if you see the pattern, the current affairs in the exam say are important for the last 6 months or the last 5 months. So मतलब whenever the student even asks me as a mentor, I am just dumbstruck. I am not able to give an answer के from where do you start with the current affairs. And when I do not have a concrete answer, obviously you will give a random answer के Feb से कर लो, Jan से कर लो, because we don't know when the exam is going to be held. और उसमें आपका बहुत सारा एफर्ट वेस्ट चला जाता है. कई लोग जैन से पढ़ रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले मुझे फोन आया था कि सर मैं तो जैन से पढ़ रहा हूँ, अब तो एग्जाम पता नहीं अगस्त या सितंबर में होगा. व्हाट शुड आई डू? शुड आई रिवाइज इट अगेन? I mean, you cannot answer such queries. It's all based on probabilities and your understanding of how can the exam can be held, but there is no guarantee about that. And this is just one aspect. Even the major aspect is about the eligibility. One of my student called me last week and he was saying he's turning 30 in July. Now, if the notification gets delayed, I mean, he's no more eligible. Last year, he could not get an interview call. He started preparing again. This year, he was hopeful that he will convert. But अभी यही नहीं पता है कि वो एग्जाम दे पाएगा या नहीं. So all this is creating a lot of confusion, and I think the biggest loser in everything what is happening is the organization which is recruiting. वही बेस्ट टैलेंट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज व्हेन टैलेंट सीज दैट यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, पता नहीं कैसे तैयारी करनी है, कब एग्जाम होगा, ऑब्वियसली गुड पीपल विल गो फॉर अदर एग्जाम्स. और स्टूडेंट्स तो लूज कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. स्टूडेंट्स आर लूजिंग. पर adding fuel to the fire is lot of videos that are being made on YouTube about the notification dates. Or I'm not blaming anyone. I mean, we also made videos on notification dates. हम भी करते हैं because as a mentor also we need to inform them, right, कि now when can the exam be held. बहुत बार डेट्स दी जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं. इसमें मेंटर्स दोष पे नहीं है, बट द होल प्रॉब्लम लाइज इन दैट देयर इज नो फिक्स नोटिफिकेशन डेट. एंड यू पीपल आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द नोटिफिकेशन डेट्स. नोटिफिकेशन डेट पे वीडियो बनेगा, 15,000 20,000 व्यूज विद इन जस्ट वन डे. आप ऑब्सेस हो चुके हैं नोटिफिकेशन डेट्स को लेकर, जबकि आपको ऑब्सेस्ड होना चाहिए with your studies, with your answer writing, with editorials reading. You should be asking yourself, have I planned enough time for myself to revise? Have I done enough descriptive answer writing practice? But no. बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट्स आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद द नोटिफिकेशन डेट्स. और नोटिफिकेशन डेट्स और आगे जाती जा रही हैं. आइदर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड और you are just wasting your time thinking अभी time है, I'll prepare later. We have seen that happening in the case of IFSCA and SEBI. बहुत जल्दी आ गए दोनों, और तब लग रहा था कि आरबीआई भी आने वाला है. and it was like कि क्या हो रहा है, सारे एग्जाम they are coming together. Everybody was confused, but I think this is a godsend के elections के कारण यार चीजें डिले हो रही हैं. and we know now कि IFSCA और SEBI तो होने ही वाला है और उसके बाद आरबीआई आने ही वाला है. और
it's like a volcano ready to erupt now, where NABARD will also come into the picture sooner or later. और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि हाँ अभी तो टाइम है, डेट आएगी, डेट आएगी, डेट कब होगा, सेबी कब होगा। अरे घंटा आपको क्या लेना है भाई, आप अपना पढ़ो। यू वेरी वेल नो कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद एकदम ऐसे ऐसे डेट्स गिरेंगी, यू विल नॉट इवन गेट टाइम टू थिंक। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, देयरफॉर आई नीड टू प्लान, मुझे पता नहीं एग्जाम कब होगा। क्या बात कर रहे हैं यार आप। You need to understand your relationship with time. There are brackets or buckets in your daily routine where you are most productive. Give your time, that time to yourself to study, to prepare for the exam. बाकी सब गया टेल लेने। उस टाइम को अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज करो। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। कोई 10 घंटे नहीं पढ़ना होता है, 4 घंटे पढ़ो और लॉन्गर टर्म गोल्स रखो। चलो मैं सोचता हूँ अगले महीने पेपर हो गया, 4 घंटे तो पढ़ो। मे बी यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस टाइम, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये क्या लॉजिक है कि इसी साल करना है, क्या मेरा हो जाएगा? आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल क्लियर दिस टाइम। आप 4 साल से कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे और आरबीआई आपको अभी 2 महीने तैयारी करके करना है। दैट इज नॉट द लॉजिक यू शुड बी गिविंग योरसेल्फ, राइट? यू शुड बी डूइंग जस्ट अ सिंसियर प्रिपरेशन एंड द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो मैं कोई आपको हार्ड स्टॉक नहीं दे रहा हूं, मतलब कमियां सब में, हमें भी, मतलब मेरे में बहुत कमियां। आई कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स, बट एज एन एस्पिरेंट मतलब एक टाइम होता है यार, मतलब होता है ना कि +1 +2 पढ़ लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब शायद वो टाइम है कि यार ये मेहनत कर लो, नोटिफिकेशन डेट्स को भूल जाओ, ठीक है? पता नहीं एग्जाम कब होगा यार, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। आप सोचो एग्जाम तो होगा ना, इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा। द मोमेंट यू आर प्रिपेयर्ड यू विल गो फॉर अ किल एंड यू विल क्लियर द एग्जाम, एंड रेस्ट ऑफ द 30 years ऑफ योर लाइफ यू आर सेट। बस ये सोचकर पढ़ो, ये सोचकर तैयारी करो। अभी भी बहुत टाइम है, ज्यादा एग्जाम्स के पीछे मत भागो। नोटिफिकेशन जब आएगी आएगी, जस्ट सेलेक्ट योर एग्जाम एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट मैसेज आई वांटेड टू गिव यू। इस ट्रैप में मत फंसो, ये एग्जाम कब होगा, वो एग्जाम कब होगा, फिर वो कब आएगा, फिर वो अगले साल कब आएगा। घंटा किसी को क्या पता अगले साल आरबीआई कब आएगा? कोई लिख के दे सकता है आपको बॉन्ड पेपर पे कि इसी महीने इसी डेट को आएगा? नो वन, राइट? अपना दिमाग लगाओ, बी प्रिपेयर्ड। बाय द टाइम द नोटिफिकेशन कम्स यू शुड बी लाइक यस, अब मजा आएगा। बाकी लोग पढ़ाई करेंगे, मैं रिवीजन करूंगा। So do let me your thoughts on this, what I've just told you. You agree or disagree? आप disagree करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से agree करो, आप disagree करो, माना। उससे और डिस्कशन फ्रूटफुल होगा। वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या रीजन हो सकते हैं कि नोटिफिकेशन डेट नहीं देता है आरबीआई। ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाली हैं। शायद मुझे कोई रीजन नहीं पता है भैया क्यों नहीं दे पा रहा है वो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना क्या दिक्कत है? यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, बट एक टेंटेटिव डेट यू कैन ऑलवेज कीप यार। Well, anyways, do let me in your comments in the comment section whether you disagree with me or you agree with me on whatever I have told you in this video, and we can have more fruitful discussion. Maybe we can put forward a request sometime कि भैया इसका कुछ करो। ऐसे आप 1-2 साल रिक्रूटमेंट करनी हो तो चल सकता है, चलो सेबी का बनता है, ऑफ ट्रैक है, कभी कर लिया फिर 2 साल बाद कर लिया। यू आर रेगुलर रिक्रूटर, यू आर रिक्रूटिंग इन हाई नंबर्स एंड यू आर द लीडिंग रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है? तो आप बिल्कुल अपना फोकस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताना। जय हिंद, लव यू ऑल।